Hello friends, and this is Deepak Singh, and on behalf of AQ Bias, we'll be discussing the 7th International Yoga Day, which was observed recently on June 21st. So in this context, many developments happened, many new initiatives were launched. So in this background, we'll be discussing the topic of International Yoga Day, and then we will discuss that what all new initiatives were launched on this day, like WHO M Yoga app, as well as Yoga Sachitra, and then we will also discuss some geography. So in this background, let's start from the topic of like what was the theme of the day. So theme of the day was yoga for well-being or yoga for wellness. So this was the theme for 2021. It was realized that since last year we are under the attack of coronavirus pandemic. So yoga was promoted to ensure that we build our immune system, or we ensure that the body is fit. So in that background, this is the theme of International Yoga Day of 2021. Now if we talk about why on 21st June it is observed, because in the northern hemisphere, again I would say in the northern hemisphere, not in the whole world, but in the northern hemisphere, 21 June is the longest day of the year and shares a special significance in many parts of the world. It is celebrated across cultures. It is also known as summer solstice, and if we talk about the northern hemisphere, so that's why 21st June was decided for the day. If we talk about the brief timeline, then after getting elected in I think May 2024, so Prime Minister Modi called for the day to be adopted as a global celebration of yoga. So there was already a demand, and Prime Minister Modi made a strong pitch for dedicating a day for the global celebration of yoga, because yoga is not only celebrated in India but across the world. So subsequently, United Nations General Assembly in its 69th session, here the session is important, they can ask a prelims related question on this. So in its 69th session, they adopted a resolution in December 2014, and they proclaimed 21st June as the International Day of Yoga. There are various days which have been designated by United Nations, जैसे टोबैको डे होता है, साइकिल डे होता है, ये रिसेंटली हमने देखा गया है. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिर डेजर्टिफिकेशन का डे होता है. जून 17 को हमने ग्लोबल डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. इसके कंटेक्स्ट में आई ऑल्सो कंडक्टेड लेक्चर ऑन यूनाइटेड नेशन UNCCD, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर. सो सिमिलरली योगा डे के लिए भी उन्होंने एक डे डेजिग्नेट कर दिया. सो 2014 में it was proclaimed, and since 2015 it is being celebrated across the world, and the first celebration was organized at Rajpath in New Delhi and was led by Prime Minister Modi ji on June 21st 2015. So this is the brief history of the yoga day, and with every year the celebrations are growing strong, number of participants are increasing. And if we regarding this, I also want to share some important information that WHO mentions yoga as a means to improve health in its Global Action Plan on Physical Activity 2018-30. So 2018 to 2030 का ये Global Action Plan on Physical Activity है, so they can ask this statement whether yoga is included under this action plan according to WHO, true or false. So it is included, and the theme for this action plan is more active people for a healthier world. So this is very important from prelims point of view. And Ministry of Ayush released its common yoga protocol in 2019, and under this it lists popular various yoga sadhanas as popular. Okay, so the key are yama, niyama, asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, ध्यान या फिर हम कह सकते हैं समाधि, बंधास एंड मुद्रास, बंधास एंड मुद्रास, सत्कर्मास, युक्तहारा, मंत्र जपा और युक्त कर्मा. सो प्राणायाम तो आप लोगों को पता होगा, यमा भी चलो पता होगा, शायद नियम भी पता होगा, और आसना भी पता होगा, या फिर आसन, हम इंग्लिश में से आसना कहते हैं, जैसे राम को रामा कहते हैं. तो यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया. पर बाकी सारे शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होंगे. पर ये बताने के लिए इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है, मंत्र जपा किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर जैसे आयुष हो गया आपका, तो आयुष में आयुर्वेदा से रिलेटेड है, सिद्धि से रिलेटेड है और योगा से रिलेटेड है. सो देयर दे कैन कंफ्यूज यू. सो इट माइट अपीयर कि मंत्र जपा इज रिलेटेड टू सिद्धि. जैसे आयुष में भी आपके काफ़ी सारे होते हैं, ये आयुर्वेदा हो गया, फिर आपका योगा हो गया.
यूनानी हो गया, तो उसमें कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, उसमें जो उसने लिस्ट करे कि क्या क्या योगा साधन बहुत पॉपुलर हैं, तो इसमें ये लिस्ट है। अगेन आई वोंट से कि सारे याद कर लो, बट जितना हो सके आप लोगों से याद कर लीजिएगा, सो दैट इन केस दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको दोबारा से रीट्रेट करा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, सब में कवर करा था। सो ये 2 की पॉइंट्स हो गए आपके योगा से रिलेटेड। अब हम इंटरनेशनल योगा डे के लोगो है उसका मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आया था, तो उससे मैंने यूज़ करा है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। सो दिस इज द लोगो, ऑफिशियल लोगो ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। So as we can see, there is a person who is joining hand, and then there are 2 leaves, then there is a hollow, and in the background there is sun. So as we can see that the joining of hands shows the union of individual and consciousness with that of universal consciousness, a perfect harmony between mind and body, man and nature, and holistic approach to health and well-being. So that is the key significance or the symbolic meaning of joining of hands. That not only between mind and body, union of mind and body, that both are joining, but apart from that even man and nature are joining. So that is the significance of this joining of hands. Then if you talk about the orange halo, ये जो आपका होता है ना, जैसे गौतम बुद्धा के पीछे भी एक halo होता है, और हिंदुइज्म में halo काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जो ऑरेंज halo होता है दैट एलिकेट्स फायर एलिमेंट आपका होता है। फिर जो ग्रीन लीव्स हैं वो आपका नेचर इंडिकेट करती है। ब्राउन लीव्स हो गया आपका अर्थ, नेचर में आने के आपके पेड़ पौधे वगैरह हो गए। ब्राउन लीव्स हो गया आपका अर्थ। तो हिंदुइज्म में काफ़ी माना जाता है ना कि की एलिमेंट्स होते हैं अर्थ, फायर, वाटर। और जो ब्लू हो गया, ये जो ह्यूमन है इसको ब्लू इसलिए करा गया क्योंकि ह्यूमन बॉडी पूरी एक काफ़ी, उसमें वाटर की कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट इज द रीज़न फॉर ब्लू। ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया या फिर नेचर हो गया। एंड जो ग्लोब शो करता है कि योगा, तो जो ग्लोब शो करता है आपका, दैट शोज आपका वननेस, दैट योगा इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू इंडिया बट इट्स इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ऑल्दो नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है, ही डिबेटेड दैट योगा इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑफ नेपाल, बट दे कीप ऑन सेइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड जो सन हो गया आपका जो पीछे है, सो दैट इज द सोर्स फॉर ऑल द आपका सोलर सिस्टम, और जो सारी एनर्जी आपके अर्थ पे आती है, सो दैट इज सन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योगास का जो लोगो है। सो एज आई डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑन दिस इन्फोग्राफिक, सो ये आप इन्फोग्राफिक अब याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, दैट वॉट इंडिकेट्स वॉट। ठीक है, आई थिंक एट मैक्स दे कैन ट्राई टू कंफ्यूज यू बिटवीन नेचर एंड अर्थ। यहाँ पे हो सकता है इन अ टेबल फॉर्मेट दे कैन आस्क, क्योंकि ये एलिमेंट है और ये उसका मीनिंग है, सो देयर दे कैन कंफ्यूज यू। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा योगा का लोगो भी हो गया। देन on this occasion M Yoga app was launched. M Yoga means mobile yoga app. ये लॉन्च करी गई थी, एंड अगेन एज आई मेंशन दैट इट वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव नहीं है, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी इनिशिएटिव है ये। सो दिस वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन द ओकेजन ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे। तो इस ऐप में कुछ नहीं है, बस काफ़ी सारे आपकी ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं और योगा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। तो जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर काफ़ी इनिशिएटिव हो गए कि भाई अब हेल्थ को भी, जो पुरानी आपकी एंशिएंट जो साइंस है उसको भी इंश्योर करना है कि मास्टर्स पे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोवाइड करा जाए, तो उसके कंटेक्स में एम योगा ऐप डेवलप करी गई है। और अगर देखें तो करंटली ये जो ऐप है ये सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं उसमें ही इंक्लूडेड है, दैट इज़ आपका हो गया इंग्लिश हो गया, नॉट हिंदी एग्जैक्टली। तो अभी इस टाइम पे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में ही है, अगेन आई वोंट से कि यूएन की, पर 2 लैंग्वेजेस आपकी हो गई इंग्लिश और हिंदी। सिर्फ इन 2 लैंग्वेज में ही आपका अवेलेबल है इस टाइम पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ग्रेजुअली बाद में जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन है उसमें भी इंक्लूड करा जाएगा, उसमें भी अवेलेबल होगी ऐप, पर अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है ये। एंड मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इट प्लेड अ की रोल इन इट्स डेवलपमेंट। एम योगा ऐप के बारे में तो ये हो गया कि ऐप किसने लॉन्च करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा उसने की रोल प्ले करा अलॉन्ग विद WHO। और ये जो अभी ऐप लॉन्च करी गई है इंग्लिश और हिंदी में है, बट ग्रेजुअली इन ऑल द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन इट विल बी इंक्लूडेड।
एंड एक्चुअली इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो डब्ल्यू ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था बाय द नेम ऑफ बी हेल्दी बी मोबाइल। ये डब्ल्यू ने लॉन्च करा था, तो इसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यू ने कोलैबोरेट करा है टू डेवलप अ ऐप। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ एम योगा ऐप कि इस इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च करा गया है। सो दिस इनिशिएटिव इन्विसेज द कंसेप्ट ऑफ बी हेल्दी बी मोबाइल अंडर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इस इनिशिएटिव का टारगेट ये था कि जो बी हेल्दी बी मोबाइल का जो इनिशिएटिव है, इसका टारगेट है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो गोल है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2030 तक अचीव होनी चाहिए, उसमें उसके लिए बी हेल्दी बी मोबाइल का इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था डब्ल्यूएचओ की तरफ से, और उसी के अंदर एम योगा ऐप भी डेवलप करी गई है। सो की टारगेट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय 2030। विद दिस इन माइंड बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च एंड अंडर दिस आपका एम योगा ऐप लॉन्च करी गई है। एंड एज आई डिस्कस दैट मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ National Institute of Yoga, it played a key role and it is named under after the our ex Prime Minister Morarji Desai. तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये है इसका की पॉइंट। एंड द इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन 1970 इन द फॉर्म ऑफ अ हॉस्पिटल, बट लेटर ऑन इन 1998 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी द इंस्टीट्यूट वाज फर्दर रीनेम्ड एज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो ये इसका बैकग्राउंड है, इन केस दे वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। नाउ अनदर की डेवलपमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे इज दैट एक योगा सचित्र करके एक बुक थी, और इसको लिखी गई, इसको इस बुक को लिखा था धर्मवीर सिंह महिदा। तो ये अराउंड 20-30 साल पहले ये बुक लिखी गई थी। इसमें भी योगा के जो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस करे थे अभी कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये बुक इन्होंने लिखी थी धर्मवीर सिंह महिदा। सो दे कैन आस्क यू दैट हु इज द ऑथर ऑफ दिस। कॉमन ऑप्शन विल बी लाइक BK अयंगर, फिर आपका बाबा रामदेव हो गया, श्री श्री रविशंकर। तो बट द करेक्ट आंसर इज धर्मवीर सिंह महिदा। इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये इनकी जो बुक लिखी गई थी 20-30 साल पहले, 26 ईयर अराउंड पहले ये बुक लिखी गई थी, योगा सचित्र। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको रीप्रिंट करा है। अगेन आई वुड रिवाइज कि योगा सचित्र इज अ बुक रिटन बाय धर्मवीर सिंह महिदा, and that was written like 26 years ago, and now Ministry of Information and Broadcasting has reprinted it. Okay, and this book contains the 8 limbs of yoga, that is yam, niyam, asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi, with special focus on yoga asan. तो ये भी आपका इनिशिएटिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, एंड इसी बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर करा था ये इन्फॉर्मेशन कि जून 21 को योगा डे आपका ऑब्जर्व करा जाता है। एंड रीजन इज क्योंकि इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ इंडिया में जो आपका है यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है जून सोल्स्टिस, दैट इज जून 21। और सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका ये जून सोल्स्टिस आपका बनाया जाता है जून 21। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये आपका है। एंड देन इसका अपोजिट होता है आपका डिसंबर सोल्स्टिस। अंडर दिस आपका सदर्न हेमिस्फेयर में आपका यहाँ पे दिसंबर 2021 जो आपका होता है वो आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। तो ये आपके सोल्स्टिस हो गए यहाँ पे, और दो हो गए आपके इक्विनॉक्स। इफ वी सी द ऑर्बिट जो आपका टिल्ट है अर्थ का, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है जो सन की जो रेस पड़ती है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं सोल्स्टिस में यहाँ पे, एंड जो इक्विनॉक्स पे होता है वहाँ पे आपका इक्वेटर पे डायरेक्टली आपकी सन रेस पड़ती हैं। सो यहाँ पे इक्वल डे होता है मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स। यहाँ पे आपका डे और नाइट बिल्कुल इक्वल लेंथ का होता है, लेकिन सोल्स्टिस में आपका डे और नाइट आपका अनइक्वल लेंथ का होता है। ओके फ्रेंड्स, so international day of the celebration of the solstice was observed on June 21, and the day was proclaimed by the UN General Assembly in 2019. A solstice is an event that occurs when the sun reaches its northerly or southerly day arc relative to the equator. So ये हो गया। अगर जून 21 की बात करें तो इट इज नोन एज समर सोल्स्टिस,
in the context of northern hemisphere, and it is the longest day of the summer season. It occurs when the sun is directly over the Tropic of Cancer, or more specifically, right over 23.5 degree. December 21 is known as winter solstice if you talk about the northern hemisphere, for being the first day of winter and the shortest day of the year. Southern hemisphere में ये उल्टा हो जाता है. Okay friends, so with this I have covered the topic of yoga. I have also covered the topics, the initiatives which were launched on the occasion of Yoga Day. Yoga सचित्र हो गया आपका, WHO M Yoga ऐप हो गया, और जो उसकी थीम थी वो भी डिस्कस कर ली. एंड विद दिस आई हैव ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक ऑफ आपका सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स. इसको मैं डिटेल में ज्योग्राफी में अलग से कवर करूंगा इन द क्लासरूम प्रोग्राम. सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द लेक्चर. आई होप यू लाइक्ड इट, and if you like this lecture then please press the like button, share it, and subscribe to our channel. And I also want to make some important announcement that we at AQ Bias are launching our foundation batch on 7th of July, and under this 800 hours of classes will be provided to you, out of which 80 hours of current affairs will be there. We are also launching optional subjects for history, geography, polity, sociology and PubAd. And we are also conducting an exam on by the name of AIIT, that is A-Cube IS Inspiration Test. The exam was conducted on 24th of June and is also being conducted on 27th of June. So जिन्होंने 24 को नहीं दे पाए थे वो 27th वाला एग्जाम दीजिए. इस एग्जाम में जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको फीस में कंसेशन मिलेगा. ओके फ्रेंड्स, सो इसके साथ मैं लेक्चर ओवर करता हूँ. I hope you liked it. So again, I would request you to please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. This is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.